क्या है? मेरी सासू माँ की सहेलियाँ पहुँच गई हैं। रितु, हु हु इज ऑलमोस्ट देयर? My co-sister is almost there. कौन वहाँ पहुँच गए हैं? वहाँ मेरी बहन पहुंच गई है। जेठानी, को-सिस्टर, देवरानी जेठानी कोई भी हो सकती है ना। को-सिस्टर रेनू ने बताया था उस दिन। Ask to sir. Sir, who is almost there? All the children are almost there. सर वहाँ कौन पहुंच गया है? सभी बच्चे करीब करीब वहां पहुंच गए हैं। This is idiom, little bit different from previous idiom. हाँ, यस सर। Can you guess? वह बहुत कृतज्ञ है। वह आस्तीन का सांप है। He is very ungrateful. अच्छा, वह जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। Sarika, who is very ungrateful? Sir, all the members of Congress party are very ungrateful. Thank you for using plural number for first answer. कौन है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है? सर, कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अपर्णा दी, who is very ungrateful? Some people of Kashmir are ungrateful. Some ungrateful. हाँ, very ungrateful. Some people of Kashmir are very ungrateful. Complete the process. दी, कौन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है? कश्मीर के कुछ लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। Who is ungrateful? Very ungrateful, भाभी? Aparna, I think Pakistanis are very ungrateful. कौन अनग्रेटफुल है? पाकिस्तानी लोग जिस थाली में खाते हैं वही उसी में छेद करते हैं। रितु, हु इज अनग्रेटफुल? So many people in India are very ungrateful. कौन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है? रेनू, बहुत से लोग ऐसे हैं इंडिया में जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हमारा ही खाते हो और हमें ही। Sir, who is ungrateful? Telgi and Beer King. What is his name? विजय माल्या। Vijay Mallya and Nirav Modi and some more people are very ungrateful. No need to Hindi, no? Guys, write down the next sentence. But let me ask Renu firstly. Which chapter is going on in your batch, Renu? So present perfect tense is going on in our batch. Correct.
Ritu, can you tell me what was the last sentence of present perfect? लाइट चली गई है, मोमबत्ती जला देना। Very nice. Aparna, tell me who made this sentence? Sir, I made this. Ritu had made. Okay. You made. Sarika made. Okay. So write down the next sentence. चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेमीकोलन, एक छोटी सी बिंदी और कॉमा, मैं थानेदार बन गया हूं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं थानेदार बन गया हूं। पूर्ण विराम। Sarika made the last sentence. So, according to your sequence, who has to make this sentence? I have to make this sentence. Go ahead, Aparna. This sentence is having two parts. First part belongs to negative. First part belongs to Aparna, first part is out of center. I will give you. और अगर आप सोच रहे हैं कि वो पिछला वाला जो सेंटेंस है ये सेम है, तो ऐसा नहीं है। चाहे तो ध्यान से देखिए, एक शब्द का अंतर, और उसकी भिन्नता को सिखाने के लिए हमने ये दो सेंटेंस रखे। पिछला सेंटेंस था चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और ये है चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ एक और नई चीज दे रहे हैं, जो प्रयोग तो की होगी आप लोगों ने, लेकिन आज उसको अच्छे से nothing to worry. Need not to worry. Then second sentence belongs to present perfect tense. Okay, I will take the subject and the subject is I. Later on I will take the helping and the helping verb is have. Then I will take the verb and third form of the verb, and the third form of the verb is become. Last I will take the object and the object is Thanedar. दोस्तों, बिकम का प्रयोग अभी भी आपकी जुबान से, इट्स ओके, बिकम का प्रयोग कभी कभी होता है, लेकिन बीन के प्रयोग पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। Sarika, speak this sentence as it is. Need not to worry, I have been थानेदार। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं थानेदार बन गई हूँ। अपर्णा दी। Need not to worry, I have been थानेदार। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं थानेदार बन गया हूँ। रेनू भाभी। Need not to worry, I have become थानेदार। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं थानेदार बन गया हूँ।
रितु नीड नॉट टू वरी, आई हैव बीन थानेदार। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं थानेदार बन गई हूँ। Sarika, put something else from your right brain. Need not to worry, I have been PM of this country. चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन गई हूँ. So now everything will be fine and normal and happy. पर Need not to worry, I have been a doctor. चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर बन गई हूँ. I can manage everything. And रेनू भाभी. Need not to worry, I have been a entrepreneur. चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ. रितु नीड नॉट टू वरी, आई हैव बीन काउंसलर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं निर्देशक बन गई, सलाहकार बन गई. One student made one sentence in one batch. It is nice, funny sentence. He said, "Need not to worry, I have been father." चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बाप बन गया. Everybody was laughing. Everybody laughed a lot. It reminded me the sentence. Write down the next sentence. मैंने आपका नाम सुना है. मैंने आपका नाम सुना है, जिसमें आदिबोधक चिन्ह. ये जाना पहचाना सा लगता है. This is very practical sentence generally we use during talking, day-to-day talking. Aparna made the last sentence. It is Renu's group, I think. So this sentence belongs to present perfect sentence. Sorry. Please Present? repeat the Hindi sentence, Renu. मैंने आपका नाम सुना है. सुना है ना. ये जाना पहचाना सा लगता है. लगता है. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. भाभी, मैंने आपका नाम सुना है, यह जाना पहचाना सा लगता है. This is a complete sentence. Okay. This sentence are having two parts. This sentence Is having two parts. Sorry. is having This two sentence, parts. yeah, this sentence is having two parts. First part is first part belong to present perfect tense, and the second part is from belongs to present simple present tense. Yes. So there you are. Okay. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the helping verb, and the helping verb is have. Then I will take third form of the verb, and the third form of the verb is heard. I have heard. Here is subsequently I will take your What is this? object. No, I have heard your name. Possessive adjective. So then I will take
possessive adjective, and the possessive adjective is your. Thereafter, in the end, I will take the object, and the object is your name is possessive adjective. Okay, object. Yeah. No, you are right. Okay. Your name is completely object here. It is. लेकिन इस बहाने अगर possessive adjective जैसी रेयर चीज, मतलब जो हमारी जुबान पे कभी नहीं थी, आ रही है, तो इट्स ओके, इट इज गुड। यहाँ पे कुछ विद्वानों का मत है कि ऑफ लगता है और कुछ का है कि नहीं लगता है। तो हमने ऑफ को ब्रैकेट में रख के लगा दिया है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप भी ब्रैकेट में रख के ऑफ लगा लीजिए। अंग्रेजी में हर उसमें कहीं कहीं मतांतर देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं ये सही है, कुछ कहते हैं ये सही। सर ये HER हियर, सर हियर के तीनों फॉर्म हियर ही है क्या? हर्ड आएगा ना? क्या हुआ फिर? मेरे से गलती हुई? नो 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 नो, इट वाज माय मिस्टेक। Okay. I have heard your name. The second sentence belongs to present simple tense. यह पहचाना. It. Firstly, I will take the subject, and the subject is it. जाना पहचाना. सर हियर से बोलते हैं जाना पहचाना को. उसके लिए तो शब्द मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो का पालन किया है। एक्चुअली दूसरा सेंटेंस बनाने की जरूरत है नहीं। जिसको यहाँ क्लिक कर गया होगा वो सीधे बोलने वाला सेंटेंस है। I have heard your. It is known. अभी नहीं। सर it is known. जाना पहचाना लगता है. Is. चलो देखते हैं ऋतु को याद है कि नहीं। बेटा हल्का सा कुछ याद है? I have heard about you. This is very known. This is very known. यही आ रहा है सर दिमाग में। सारिका? It is very known. अपर्णा से इसलिए लास्ट में पूछेंगे क्योंकि उसने हाथ उठा दिया था। सर इट इज फेमिलियर। अपर्णा? सेम, इट इज फैमिलियर। नहीं, तुम लोग भूल गए एक चीज, सबके सब भूल गए। सर इट साउंड सो फेमिलियर। इट साउंड सो इंटरेक्टिव सेंटेंस। वो चेक करना चाह रहे थे लेडीज कि वो इंटरेक्टिव सेंटेंस याद है कि नहीं। चलो अच्छी बात है, याद आ गया। सारिका, स्पीक दिस सेंटेंस एज आई हैव हर्ड योर नेम, इट साउंड्स फेमिलियर। सर फेमिलियर बोलते कि फेमिलियर बोलते हैं? फैमिलियर ही बोलते हैं और थोड़ा सा फेमिलियर। फैमिलियर जी, इट साउंड्स फेमिलियर। क्या मैंने आपका नाम सुना है या जाना पहचाना सा लगता है? अपर्णा? I have heard your name. It sounds familiar. मैंने आपका नाम सुना है, ये जाना पहचाना सा लगता है। रेनू भाभी? मैंने I have heard your name. It sounds familiar. मैंने आपका नाम सुना है, यह जाना पहचाना सा लगता है। रितु? I have heard your name. It sounds familiar. मैंने आपका नाम सुना है, ये जाना पहचाना। फैमिलियर शब्द फैमिली से नहीं बना है, इसको दिमाग में रखिए। दोनों अलग शब्द है। ये एडजेक्टिव है
और इसका अर्थ होता है वेल नोन। हम इसका प्रयोग ऐसे जनरल लाइफ में कर सकते हैं, ही इज माई फैमिलियर, वे मेरे परिचित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे फैमिली से संबंधित है, नहीं, फैमिलियर है। You can write it down and simultaneously I'm speaking the next sentence. And the next sentence is, ऐसा लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। Ladies, this is also very common sentence. Generally, we speak in our day-to-day life. Who has to make this sentence? Sir, I have to make that sentence. Please go ahead. That sentence is having two parts. Very good. First part belongs to present simple tense, Very good. and second part belongs to present perfect tense. Very good. Firstly, I will take the first part, and first part is I will take directly. It seems, Very good. and then I will take the second part, and firstly I will take the subject. Subject is I. Seems is the first form of verb, and I will put the S, the first form of word, first form of verb. So it's C. V1 plus S. Okay, and then I will take the second part in this sentence. Firstly, I will take the subject, and subject I. Then I will take the helping verb, and the helping verb is have here. Then I will take the third form of verb, and the third form of verb is saw. I have saw. I have seen. Sorry, I have seen. The third form of verb is seen. Ladies, consider, be serious from tomorrow and make 4 sentences of present perfect tense. And it is necessary at least make for 10 days until the next instruction comes. Because if your third forms are not good, perfect, you can make mistake. Third form should be perfect. I have seen. I have seen you. नहीं, मैंने पहले भी कहीं देखा. I have seen somewhere. अब यहाँ तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अनुवाद करने की कोशिश कर रही हो रितु। अभी तक तुम ग्रामर का कहना मान रही थी, ऊपर वाले का कहना मान रही थी, अब तुम अपने मन से आगे बढ़ रही हो, तो गलती होने की ज्यादा संभावना है। कहीं देखा है सर? नहीं. नहीं, वो सब भूल जाओ, वो उस क्रम में थोड़ी आते हैं। अब अगर हम अनुवाद करें तो क्रम में तो ये आएगा, मैंने है देखा, ये तो ऐसा हो जाएगा, मैंने है देखा। वो तो इंग्लिश का क्रम अपना है, हिंदी का क्रम अपना है, अलग है।
I have seen you. I have इसको seen. हमेशा फॉलो करके चलो। और ये लिखे हैं फॉर्मूले, हमेशा फॉर्मूले का अनुसरण करो। Sir, not visible. हाँ, वो तो केवल दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है ना प्रेजेंट परफेक्ट का। I have, हेडिंग तो sir, possessive adjective आ जाएगा। I have seen you. नहीं, I have seen. Sorry, एक मिनट। I have seen before. नहीं बनेगा बेटा रितु ऐसे। ये तुम यू आर यूजिंग रैंडम शॉट्स। हैव आई गिवन यू रैंडम शॉट? तुक्का मारना, इट इज कॉल्ड तुक्का। I have seen. ऐसा लगता है। You have followed this nicely. This is a subject. You have followed this point nicely. This is helping verb. You have followed this point nicely. This is third form of verb. अब तुमने मैनेज नहीं किया, नहीं तो एक पेज पलटती और फॉर्मूले पे पहुंच जाती प्रेजेंट परफेक्ट के। रितु सेंटेंस सही लिखा ना? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। पहले भी कहीं देखा है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा। तुम्हें 20 का दंड चाहिए क्या पढ़ना? तो सब सही लिखा है। अच्छा। व्यक्ति अनुवाद में जैसे ही आया तो इट सक्स। हैव आई गिवन यू दिस इंटेंट? लाइन लुट जाती है इफ यू कम टू द ट्रांसलेशन। Sorry, I have seen earlier. चलो हम तुम्हें वहां ले ही चलते हैं। वैसे तो तुम सामने लिखा हुआ सब, बाकी सबके सामने लिखा हुआ है क्योंकि सब चैप्टर में है। बस तुमने मैनेज नहीं किया है अपना रजिस्टर। नहीं सर, मैंने ऊपर वाला, दिस इज ऊपर वाला, इससे बाहर सेंटेंस कभी नहीं जाएगा व्याकरण में। द सेंटेंस विल नेवर unfollow this structure. This is affirmative, inverted, negative, WH, interrogator negative, WH negative. But these are super formulas. These are not the formulas of present perfect. These are super formulas. You have followed this. You have followed this. You have followed this. seems I have 3 seen. points. नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा। समवेयर ही आ रहा है दिमाग में बार बार। तुम जब तक यहाँ से अनुवाद नहीं हटाओगी, यहाँ आगे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। यहाँ से वो हिंदी को हटाना पड़ेगा। हिंदी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये है ऊपर वाला, इसको प्रणाम करो, ऊपर वाले की बात मानो। पहले दिन से हम यही चीज बोलते हैं, दिस इज ऊपर वाला।
और वो पूरा सेंटेंस बना के बता रहा है, इसमें पूरा सेंटेंस साफ साफ दिखता है। I have seen. अब हम पास भी नहीं करेंगे रितु इसको। I have seen. It seems I have seen. पहले भी कहीं। तुम्हारे मन में हिंदी चल रहा है बुरी तरह से, वो तुम्हें बाहर नहीं आने देगा। उससे बाहर आओ, इसकी बात मानो। पहले भी कहीं देखा है। तुमने 3 स्टेप तक इसकी बात मानी तो वहां तक सेंटेंस सही हो गया। आगे भी इसी की बात मान लो, क्या है। और अगर तुम्हें अच्छे से अनुवाद करना है तो चलो हम तुम्हें अच्छे से अनुवाद करके दिखा दें। I have seen before. नहीं सर, नहीं आ रहा मुझे। नहीं चले, तुम्हें अच्छे से अनुवाद भी करके दिखा दें। अगर तुम्हारा मन उसमें लगा हुआ है तो ये है सेंटेंस। अब वैसे तो मैंने का अर्थ यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ये कहीं देखा है। चलो अनुवाद करते हैं। देखा के लिए सबसे पहले अपन रख देते हैं यहाँ। यहाँ आएगा क्या? और है के लिए रख देते हैं है। क्या यहाँ आएंगे? अगर अनुवाद ही कर रहे हैं तो कहीं के लिए भी शब्द हम बता दे रहे थे। लो वो शब्द भी ले, क्या इस क्रम में रखोगे सेंटेंस? ई के लिए लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। पहले के लिए भी हम शब्द लगा देते हैं। ये लगा दिया तो क्या सेंटेंस ऐसा बने? Early also somewhere seen have। अच्छे से अनुवाद करते हैं। अरे सर, आई हैव सीन तक तो करेक्ट गया, लेकिन उसके बाद ऐड करना है ना, उसमें अटक रही हूँ मैं। आई हैव तो फिर सीन। वहां लेकर चले, या तुम अपना फार्मूला देख लो, पेज के ऊपर ही लिखा रहता सबसे ऊपर। तुमने लिखा है कि नहीं पता नहीं। अरे लिखा है सर। लिखा है तो देख लो, उसका पालन कर लो। और एक सीधा सवाल है, तुम यहाँ 3 तक कैसे चले उसके अनुसार? या तो फिर यहाँ पे भी मत चलो उसके अनुसार। तो यहाँ 3 बिंदुओं तक तो फॉर्मूले का पालन कर रही है। सब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए, आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए सर। ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा ही आएगा। ग्रामर है, एक सीक्वेंस, एक तरीका है। इंग्लिश की ग्रामर तो यही तरीका है। अब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बता दो?
कर्ता का कर्म के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ प्रभाव किस पे पड़ रहा है बता दो जरा। कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अगर कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो फिर वो करेगा नहीं, कैसे? कर्ता का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट। कर्ता का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता। क्रिया सारिका, का प्रभाव कर्म कर्म किसी पे पड़ता कहते है। हैं? सुन लो जरा, एक मिनट रितु। सारिका, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म किससे कहते हैं? सर जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो क्रिया कौन सी हो रही है ऋतु, तुम्हें दिख रही है कौन सी देखने क्रिया की, हो रही देखने है? हाँ, की। देखने का काम वहां देखो कौन कर रहा है। जो देखने का काम कर रहा है वो करता है मैंने, कौन? आई, मैं। मैं। और तुम देख किसको रही हो? वो है कर्म। याद है आई लव यू, ये सेंटेंस हम बार बार दोहराते हैं, आई लव यू। तुम किसको देख रही हो उस सेंटेंस में बता दो। ऑब्जेक्ट को। तो वही तो चाहिए है। आई हैव सीन यू। आपने यू मना किया सर। किसने हमने मना किया? कहा था, हमने उसको बोला था बुलाओ यू बुलाओ, बोलेंगे, उसको तो आपने किसने बोला मना किया? नहीं। किसने मना किया? क्यों तुमने मना किया? वीडियो, पढ़ा वीडियो देखना सारिका, सर, आप तुमने बाद मना में, किया? मैंने बोला था नहीं नहीं, यू। तुमने खिड़की बंद कर ली, तुमने मना किया। देखो सबने खिड़की बंद कर ली। सर आपने मना किया, मैंने यू बोला था। आई हैव सीन यू, आपने बोला नहीं आएगा, नहीं, नहीं बनेगा। किस किसने यूज सुना था भाई? हाथ उठा लो। अब वीडियो देखना अच्छा, बाद में मैंने बोला था आई हैव सीन यू। अभी हाथ उठवा लेते ना, किस किसने यूज सुना था भैया? हाथ उठाओ। एक भी हाथ नहीं उठ रहा, देखो रितु। सर हम उठा रहे हैं कि आपने बोला था। अच्छा, यू सुना नहीं होगा आपने, लेकिन मैंने यू बोला था, हाँ सबने कहा हमने नहीं। नहीं सुना होगा, हालांकि तुम्हारा पिच ऑफ वॉइस इतना है कि कोई भी मना नहीं कर सकता। शॉपिंग हो गई होगी सर बात वीडियो अलग है। देखिएगा बाद में, मैंने बोला था आई हैव सीन यू, तो नहीं बेटा नहीं बनेगा ऐसे। तो तब से गाड़ी अटक गई सर। आई हैव सीन यू अर्लियर। तुम समवेयर पे पहुंच गई थी बेटा, हमने समवेयर सुना था। हाँ, समवेयर भी लगा सकते हैं। और पूरी रिकॉर्डिंग तो जी है, और जी, समवेयर। देख, है ना? समवेयर इज परफेक्ट वर्ड इज हियर। Somewhere is the extension here. नहीं, पहले ये बोलो फिर ये बोलो। I have seen you. नहीं, Some. सेंटेंस मत बनाओ। यहाँ से कैसे शुरू करो? असली। Firstly, I will take the subject, and subject is I here, and then I will take the helping verb, and the helping verb is have here, and then I will take the third form of verb, and the third form of verb is seen. Then I will take the object, and the object is you. Lastly, I will take the extension, and the extension is somewhere. Finally, I will put the full stop here. So sentences, it seems I have seen you somewhere. लेडीज, एक शब्द तो बच ही रहा है ना? कौन बताएगा उसके लिए क्या आएगा? बिफोर सर। हाँ, अर्ली तो नहीं आएगा। हमने जानबूझ के यहाँ अर्ली लिख दिया। बिफोर भी मैंने यूज किया था कहीं। अभी तो नहीं किया था। अभी नहीं किया, पहले किया था सर, बनाने, जब बनाने की कोशिश कर रहे थे सर तब। When I was trying, that time I have used that word before. सही का। इट सीम्स आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। अपर्णा दी। It seems I have seen you somewhere before.
मैंने आपको पहले भी कहीं देखा। रेनू भाभी, It seems I have seen you somewhere before. ऐसा लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा है। रितु, It seems I have seen you somewhere before. ऐसा लगता है मैंने पहले भी कहीं देखा। Write down the next sentence. जिंदगी बहुत कठिन हो गई। जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence belongs to present perfect tense. Firstly, and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is life. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is has. Thereafter, I will take the life. Thereafter, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is been. Then I will take the adverb, and the adverb is so. And lastly, I will take the adjective or object, and the adjective or object is hard. And lastly, I will put the full stop at the end of the sentence. So sentence is, the life has been so tough. अच्छा. यहाँ आपके पास 3 एडवर्ब्स हैं जो आपकी मर्जी हो। 3 एडजेक्टिव्स हैं, तीनों प्रचलन में है। कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, टफ, वेरी, टू, सो। सब लोग बदल बदल के बोलना तो एक एक बार सबसे प्रयोग हो जाए। सारिका, what has been so complicated? Sir, the life has been so complicated. क्या बहुत कठिन हो गई? सर, जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। Aparna Di, what has been so tough? Sarika, the life has been too difficult. जी, क्या बहुत कठिन हो गया है? जिंदगी बहुत कठिन हो गई। रेनू भाभी, what has been so tough? life has been very complicated. भाभी, क्या कठिन हो गया है? जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। रितु, what has been very complicated? The life has been very difficult. क्या बहुत कठिन हो गया है? जिंदगी बहुत कठिन हो गई। Sir, what has been so tough? The living style has been so tough. सर, क्या बहुत कठिन हो गया है? जीवन जीने का तरीका बहुत कठिन हो गया। The next sentence is, So come again, please. Living style. style. The way of Stand. living. The The way of way of- living has been so complicated. Sir, the way of thinking is so complicated. Yes, सोचने का the way of thinking has been so complicated. Right. The way of parenting has been so complicated. Okay, the next sentence is,
माफ करना विस्मयादि बोधक चिन्ह। मैं ता जिंदगी उर्दू का शब्द है दोस्तों। मैं ता जिंदगी तुम्हारे साथ कठोर बना रहा। माफ करना, मैं ता जिंदगी तुम्हारे साथ कठोर बना रहा। Who has to make this sentence? I have to make this sentence. This sentence is having two parts. First part belongs to order a request, and I will take as it is directly. Sorry. सॉरी वर्ब नहीं है पढ़ना। अच्छा। ऑर्डर रिक्वेस्ट में हमेशा V1 आता है शुरू में। Sorry is not verb, that's why it cannot come here. Sorry is not verb, that's why you cannot put here. Sorry is an adjective. Sorry एक विशेषण है। Neera. No problem. I will take the help of somebody else. Anybody else, please help. Me, Sir, Sir, please excuse me forgive me. या Forgive forgive me. me. Please Forgive forgive me. me. आ गया forgive me. पहले ही आ गया था. Forgive me. Then I will take the second sentence. This sentence belongs to present perfect tense. It is an affirmative. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is have. Then I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is been. Then I will take the adverb, adjective, adjective. इतना डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है पढ़ना। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो बी के बाद हमेशा ही क्या आया है? एडजेक्टिव। तो बी यहाँ, ये बात अलग है कि बी अपने इस रूप में आ रहा है, लेकिन वो पालन तो होगा नियम। I have been rude. Then I will take the preposition with. Then I will take the object, and the object is you. With you, to you, and I will take the extension entire life. And the sentence is, forgive me, I have been rude to you entire life. Forgive me, I've been rude to you entire life. Ritu. Forgive me, I have been rude to you entire life. माफ करना, मैं ता जिंदगी तुम्हारे साथ कठोर रहा, कठोर बना रहा।
यही ना हिंदी सेंटेंस सारिका? मीनू, हाँ जी। Forgive me, I have been rude to you नेटवर्क the इज entire the life. लूजिंग। माफ करना, मैं ता जिंदगी तुम्हारे साथ कठोर बना रहा। सारिका? Forgive me, I have been rude to you This entire network the is life. getting disturbed, so I'm taking a leave. Thank you for joining. Thank you, sir. Network is leaving us. Thank you, sir. Thank you, sir.